عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. بارہ سورہ نساء مز ووت اسہ یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن خواتین ہند حقوق بیان کرمت تمن متعلق ووت اس پرن. اور رات کس درسس مز آیو ضمنن توبک بیان کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کے شرائط کیا ہیں اور کو تامت اللہ تبارک و تعالیٰ اکس انسان سن توبہ قبول کرن. تو آج کا جو درس ہے اس میں پھر سے وہی خواتین اور عورتوں کے حقوق پھر سے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرماون یا ایھا الذین آمنو، خطاب کمن؟ ایمان والن. اے ایمان والو، لا یحل لکم، آپ کے لیے ہرگز بھی یہ حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ آپ عورتوں کو زبردستی وراثت میں اپنے لے جائیں یا آپ زبردستی عورتوں کے وارث بن جائیں. بہرحال ات آئے مبارکس اخ خاص شان نزول اخ. اسلام برونٹ دور جاہلیتس مز یتی اسلامن واریاہ زیادہ احسان کر انسانیتس پہ، تت اخ احسان یہ کہ دور جاہلیتس مز اوس اخ انتہائی قبیح تو اخ انتہائی خراب رسم اخ عرب کین لکن مز. سو یہ کہ یل اخ انسان مرن اوس تو اس کی باقی مال کی طرح اس سے جائیداد پاس کن تراون اوس وہ تو وارثوں میں تقسیم ہوتا ہی تھا، لیکن ساتھ میں اس کی بیویاں جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا تھا وہ بھی وراثت کی ہی طرح تقسیم ہوتی تھیں. تم تے آس کت پٹ گسن تقسیم وراثت کس پٹ ہی. بلکہ روایات میں آتا ہے اور تاریخ چن سیرت چن کتابن میں سے لکھت کہ کسی مرد کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ بڑے بیٹے کے حصے میں آتی تھی. یعنی بوڑ نیچو یوزن چھ نو اللہ تعالیٰ بچائن، اس کا تو ہم تصور بھی آج نہیں کر سکتے ہیں. وہ پھر بیوی بن جاتی تھی کس کی؟ بڑے والے بیٹے، یعنی نیچو اوس ماجد خامد بنن. یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی کبھی رسم تھی کن میں؟ اس عرب معاشرے میں دوری جاہلیت میں. تو جہاں اسلام نے بہت سے احسانات عورتوں پر کیے، ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق آیات نازل کی کہ یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا انسانی کوئی اس میں یا انسان کی عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنی ماؤں کو یا آپ اپنی عورتوں کو وراثت کے مال کی طرح لوگوں میں تقسیم کرتے پھرے. آخذ یہ رسم تو اس پر بھی قرآن نے حکم نازل کیا جو آج کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے وارث بن بیٹھیں. یعنی عورت وراثت کی مال کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو وراثت کے مال کی طرح تقسیم کرنے بیٹھ جائیں. آخذ یہ خراب رسم، اس پر بھی آیت نازل ہو گئی. دوسرا ایک اور انتہائی خراب رسم یہ بھی تھی، اور خراب ان میں یہ ایک چل پڑی تھی رسم. وہ یہ تھی، ایک تو اس عورت یزن بیچاری اس کا خود کا کوئی اختیار نہیں تھا. پہلے یہ بیوی تھی کسی اور شخص کی، اب وراثت کی طرح تقسیم ہو گئی تو کسی اور کی بیوی بن گئی. دیم اس ات پہ بیاکھ ظلم امس خاتون پہ یون کرنے کہ بیٹے کی یا کسی مورث کی وراثت میں جب یہ عورت آ گئی تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا مگر مہر ادا نہیں کرتا تھا. گوڑ اس ظلم کہ گوڑ گھے یہ نیچس بنے یہ خانداری یا کس وراثت کے وارثس بنے یہ خانداری. دوسرا یہ تھا، عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی یہ خاتون سے تم کرن نکاح.
अरब में दस्तूर था वो 4-4, 3-3, 4-4 निकाह करते थे, बल्कि दौरी जाहिलियत में तो वो 10-10 निकाह भी करते थे। तो इस वजह से वहां पर औरतों की कमी थी और औरतों की डिमांड ज्यादा थी। यानी सहल बहल उस निकाह बनन क्या अकिस अकिस इंसान सद निकाह मज कज खातून 4-4, 5-5। तो इसलिए जब भी किसी औरत से निकाह होता था बहुत ज्यादा महर देना पड़ता था, तत पे ज्यादा महर क्या तेले गए तम सद निकाह मज, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। तो इस वजह से ये इस तरह से भी बच जाते थे कि चलो बनी बनाई बीवी बन गई, न तो महर देना है न तो माल ही खर्च करना था, तो यथ हम खान ये हंग तो मंगे गम निकाह मज। तो इस पर भी आयत नाजिल हो गई कि इस माल को या इनका ये माल जो जायज माल है ये क्या उमन तलफ कर, ये क्यों आप इनका सलब करते हैं। दयम यह कि इन औरतों के पास जो माल होता था, यानी कंसी शख्स गयो इंतकाल, अब इसकी बीवी के पास कुछ माल होता था, चाहे मोहर की सूरत में हो, चाहे सोने चांदी की सूरत में हो, या चाहे किसी और सूरत में इसके पास माल होता था। तो ये वारिस जो थे जिनकी वरासत में इनका हिस्सा था, खास तौर पर बड़े बेटे के पास, जब ये औरत उसकी बीवी बन जाती थी यदि अम सदिस वरासत तो जो इसका माल होता था, महर अमिस प्रोन अम सुन माल अम सुन युस जायदाद उस, तो ये हड़प कर जाता था कौन, ये नया खामद। अब यहाँ मानते तो ये चीज अम सुन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर भी आयतें नाजिल की कि आप इनका माल कैसे खाते हो, आप इनका माल कैसे गस्ब करते हो। और ब्याक जुल्म कारण अगर इसके साथ निकाह नहीं करते, अगर पान अमिस निकाह करहन क्या अमस खातून निकाह बी कारण जो ज्यादा महर दी है, और वो महर जो थे वो इस औरत को नहीं देते थे, वो खुद खा जाते थे। ये जुल्म। और ब्याक जुल्म ये कि इस औरत को न तो खुद इससे निकाह करते थे न तो किसी दूसरे को इससे निकाह करने देते थे, इसको कैद करके रखते थे कहां पर, अपने घर में, और तब तक कैद करते थे जब तक कि वो खुद इंतकाल न कर जाए, युतान तमिस मौत ही है। और फिर जो पीछे वो माल छोड़कर जाती थी उसको वो गस्ब करते थे, उसको वो खाते थे। तो इन तमाम रस्मों का कला कमा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की। बहरहाल ये पस मंजर आप जहन में रखेंगे तो अब हम इस आयत का तर्जमा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी खिताब किन से है, ईमान वालों से, यानी सहाबा से खिताब है कि जो दौरी जाहिलियत की ये रस्म थी, जो दौरी जाहिलियत में आपके ये कभी जो आपके रसूम थे, अब इनसे आपको सच्ची पक्की तौबा करनी चाहिए। बहरहाल आज सीरत प्रोग्राम मनावन, आज रबीउल अव्वल रेत, जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाकिब और उनके एहसानात बयान किए जाते हैं, मगर आम तौर पर बदकिस्मती कि इन मजलिसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान किए जाते हैं कि वो ऐसे नबी थे, ऐसे थे, या उनकी मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, जबकि अदना से अदना दर्जे का उम्मती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखता है। जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसानात इस उम्मत पर किए हैं, उम्मत पर ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर जो एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, उन एहसानात को उजागर करने की और उन एहसानात को लोगों के सामने बयान करने की जरूरत थी। बहरहाल बुझ सीरतस पे किताब पढ़न, हैरान हो जाता है इंसान कि गौर कित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रजनावन, लेकिन हम उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली मकाम को पहचानने से कासिर हैं। किताब मगरिब एक फिलासफर लिखमज, काश वो मिल जाती, बहरहाल सचिन मार्केटस मज क्या, अलबत्ता डाउनलोड होती है वो, प्रॉफिट फॉर आवर टाइम इस तक नाव, अगर किसी को मौका मिले वो पढ़िएगा। उसमें आप देखिएगा कि तेम लड़की किस ईमान उन मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे उसने दर दर के ये धक्के खाए हैं, और फिर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को देखकर उसने ईमान लाया है। गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करन, गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी मुतलिक बाज़त इंतहाई संजीदगी सान पढ़न, मगर बदकिस्मती हम हैं, हमने मेले ठेलों में जुलूसों में इस सारे सीरत के पैगाम को गुम कर दिया। बहरहाल ये पे मैं ज़िम्नन यथनस वनुन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक आयत है कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। रहमत तो वो तमाम दुनिया के लिए थे ही, फिरिश्तों के लिए भी रहमत, लोगों के लिए भी रहमत, बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत। तारीख में क्या वाक़ात सीरत में, वो ऊंट आया था रसूलुल्लाह के पास, पत्थरों ने गवाही दी। बहरहाल उस रहमत का सबसे बड़ा मजहर यह है
कि उस वक्त औरतों की जो नागुफ्तबे हालत थी, औरतों को हैवानों से भी बदतर सलूक किया जाता था उनके साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत कि जिस पैगाम की वजह से उन्होंने इन औरतों को इज्जत का मकाम बख्शा। तसव्वुर करिए तमे माशरुक यथ माशरस मज औरत को जिंदा दफन किया जाता था। तसव्वुर कीजिए कि जिस माशरे में औरत वरासत के माल की तरह तकसीम होती थी, आज तो ये बात सुनकर ही हमें लर्जा होता है कि मौज है क्या बनित नेची सज खानदारी। ये तो मतलब हमारे लिए आज गए गुजरे माशरे में, आज तिश माशरे में यीचा ज्यादा तबाही, यीचा ज्यादा खर्च, मगर इतना हमारा माशरा गया गुजरा नहीं है कि आज भी हमें इस बात को सुनकर घिन आती है। अब उस तस्वुर कीजिए उस माशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या मकाम अता किया। और हदीस फरमो कि अगर ये चाहे मौज तो इसके कदमों के नीचे आपके लिए जन्नत है। अगर आपकी बहन है ये, अगर इनकी सही परवरिश करोगे तो जन्नत में मेरे साथ होगे। रसूलुल्लाह फरमो ये ज़ कोड़ आसन या ज़ बेय आसन, पत कर तुमन से रज तरबियत, रज अत क्या वनन देखभाल करे, तो रसूलुल्लाह ने अपने उंगलियों के इशारे से बताया कि ये कयामत के रोज मेरे साथ गो ये मकाम बखु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुमन अमन खवातीन। तो बहरहाल इन्हीं एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, ये जायज नहीं है आपके लिए, अंतरिसुन निसा, कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। यानी ये आपके लिए जायज नहीं है। जो दौरी जाहिलियत की रस्म थी कि आप अपनी औरतों को वरासत की तरह तकसीम करते थे, मुसलमानों खूब समझ लो, अब इस्लाम आया है, इस्लाम में इस चीज की बहरहाल कोई भी गुंजाइश और कोई भी सूरत हाल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, हरगिज आपके लिए ये जायज नहीं है, हरगिज आपके लिए हलाल नहीं है, अंतरिसुन निसा अकरहा, कि आप जबरदस्ती इन औरतों के वारिस बन जाओ। अच्छा, यहाँ क्यों कहा गया जबरदस्ती? क्योंकि कुछ वारिसों के साथ बहरहाल निकाह जायज होता है, वो अगर खुशी से और उसकी रजामंदी से के साथ उसके साथ निकाह करे वो तो एक बात है, मगर बेटों के लिए या भाइयों के लिए या उस वारिस के लिए जिसके साथ इसका निकाह जायज ही नहीं, आप जबरदस्ती इसको अपनी वरासत में ले आए इससे फायदा उठाने के लिए, इसके माल को हासिल करने के लिए, तो यह हरगिज आपके लिए जायज नहीं है। बहरहाल कुछ पाकीज़ा तालीम छ इस्लाम, और इस्लाम दुश्मनों के लिए ये बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है जो इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने औरतों को घरों में कैद करके रखा है। जरा तसव्वुर कीजिए उस माशरे का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने कौन सा मर्तबा और मकाम इन औरतों को बहरहाल बख्शा है। अम पछ दय्यम रस्म, अल्लाह ताला फरमान, वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, वला ताज़ुलूहुन्ना, और न ही उनसे इसलिए उनको घर में रोके रखो कि आप इनके माल को गस्ब करो। यानी फिर से वही मैंने कहा कि यमन खातूनन या तो इनको घर में कैद करके रखते थे, इनको दूसरा निकाह करने नहीं देते थे। और इसमें दूसरा निकाह करने क्यों नहीं देते थे? ताकि जो माल इस औरत के पास है, चाहे मोहर की शक्ल में हो, चाहे इसकी जायदाद की शक्ल में हो, चाहे सोने चांदी की शक्ल में हो, अगर ये 20 का इस मर्द से निकाह करे तो कुदरती तौर पर ये मोहर, ये जायदाद, ये सोना चांदी वो अपने साथ ले जाएगी, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये इन औरतों को घरों में कैद करके रखते थे ताकि फिर ये खुद ब खुद वफात पा जाएगी और मरने के बाद हम इनके माल को आसानी के साथ हड़प कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया वला ताज़ुलूहुन्ना, आपके लिए यह भी हरगिज जायज नहीं है, लिताज़ुलूहुन्ना, आपके लिए हरगिज ये जायज नहीं है कि आप इनको कैद करके रखो अपने घरों में, लितज़हबू, ताकि आप गस्ब करो, ताकि आप पकड़ सको, बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि आप इसमें से कुछ माल वसूल कर सको जो ये अपने पास रखते हैं। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, हाँ एक सूरत में आप इनको घरों में कैद कर सकते हो अगर ये खुली हुई फाहिश कामों में
गुजर मुलविस हो जाए, यानी अल्लाह ताला बचे अगर ये बदकारी में मुलविस गसन या अगर ये भी कुछ गुनाह में मुलविस गसन, उस सूरत में तो कल ही हमने पढ़ा पहले जमाने में ये दस्तूर था और हुक्म भी था कि इनको अपने घरों में कैद करो, मगर फिर सूरह नूर में उसके लिए बाज़ाब्ता अलग से हुक्म आया कि या तो उनको कोड़े मारे जाएंगे या तो उनको संसार किया जाएगा। मगर यम सातन ये हुक्म आओ, यम सातन उसमें प्रोन हुक्म, तो इन्हें कहा गया कि आपके लिए हरगिज जायज नहीं है कि आप इनको घरों में कैद करके रखो ताकि आप इनके मालों पर या क्या मानन जबरदस्ती कब्जा कर लो। आपके लिए ये जायज नहीं है, और न तो आपके लिए ये जायज है कि आप इनका निकाह किसी दूसरे मर्द के साथ कर दो और उनसे महर वसूल करो, उनसे माल वसूल करो और वो खुद खाओ, इन औरतों को कुछ भी इसमें से हिस्सा न दो। हाँ, एक सूरत में आप इनको कैद कर सकते हो अगर ये सरी बेहयाई के कामों में मुलविस हो जाए। अगर इन सरी बेहयाई हिंदिस काम में क्या कहते हैं, तब तो आपको इख्तियार है कि आप इनको किस में कैद कर सकते हो, घरों में कैद कर सकते। इसका हुक्म हमने कल ही पढ़ा था, यूजर ओतर दरसस में पढ़ा, मगर याद है जहनस में ये दरस इब्तिदाई दौर का था ये हुक्म, फिर बाद में सूरह नूर में ये हुक्म तब्दील हो गया। वहां पर कहा गया कि अगर कोई औरत फहश काम या जिनाकारी अल्लाह ताला बचाए या बदकारी में मुब्तला हो जाए, तो अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे शहादत वसूल करने के बाद, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा, सही करना संसार। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। हाँ, ये इंतहाई ताकीदी हुक्म मर्दों के लिए है, और ये इस्लाम की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती यहां पर बयान की गई है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करना, यानी इमन खातून सहित अजो करन क्या, पानियन खानदारियन सहित अजो करन बेहतरीन सलूक। बहरहाल रिवायत में आता है, ये रिवायत मैंने बार बार यहाँ दरस में पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो खैरुकुम ले अहले, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। व अना खैरुकुम मिन अहले, और याद रखो लोगों, तुम में सबसे बेहतर मैं अपने घर वालों के लिए हूं। यानी इसका मतलब है अगर आपको देखना है कि घर वालों के साथ कैसा सलूक करना है तो आपको किसकी तरफ देखना होगा, मेरी तरफ देखना। क्या अल्लाह ताला फरमान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, और हमारे लिए नमूना सीरत की किताब से बरित कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा बर्ताव हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ किया, कैसा बर्ताव हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ किया, और कैसा बर्ताव बाकी उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन के साथ किया। बल्कि रवायत में आमद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम खुद करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, बकरियों का दूध भी दोते थे, अगर जूते में सिलाई करनी होती तो खुद सिलाई भी करते थे, बल्कि कभी कभी चूल्हा भी खुद जलाते थे। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसको अपनाने की जरूरत है। मगर वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया, हमने सारा कुछ मेले और ठेलों में सब कुछ घुमा दिया, ये असली तरीको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकोर ऐसे गुम। तो यहाँ पर हुक्म आया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करो। बल्कि रवायत में आमद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त ओस, यानी जब अब रफीक आला से मिलने जा रहे थे, यानी नज़ा की हालत में थे, आखिरी कलिमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहानी मुबारक पर थे वो क्या थे, ताकीद कारण बशत वसीयत कारण कत मुतलिक अस्सला, एक तो नमाज की पाबंदी करना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो आपके ज़ेर साया है, यानी यम तो मातहत तुमन पे कर नरमी। तो फुकहा ने और मुहद्दिसीन ने लिखा इसमें एक तो मुलाजिम भी आते हैं और इसमें घर की औरतें भी आती हैं, क्योंकि तुम तिश्कमन आसन मातहत आसन। और हज्जतुल विदाओ की जन खुदबुश जो इस्लामी और इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चार्टर है। बहरहाल तथ मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोट कम 1,24,000 कमो बेश साहब सब आसन, तो वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की गवाही लेते हैं कि ए सहाबा गवाह रहो, क्या मैंने आप तक दीन का पैगाम पहुंचाया? तो सहाबा यक जबान होकर कहते हैं बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल तहज वातनु व अस्तामत पैगाम। तो उसी हज्जतुल वदा के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म और एक नसीहत यह भी की थी कि ए लोगों, खबरदार हो जाओ अपनी बीवियों के साथ नरमी के साथ पेश आना, पन्नन घर वाले से क्या नरमी से पेश,
और फिर ये भी कहा रसूलुल्लाह ने, खबरदार याद रखो आपने अल्लाह के नाम पर उनको अपने उक़ुब में लिया है, यानी तु पन्निस तहवीलस में तुम खुदा से नाव है, यानी खुद भाई निकाह जब होता है ईजाब कबूल वो किसके नाम पर होता है, वो अल्लाह के, इसलिए अल्लाह के नाम का पास रखना यमन अजो कारण बेहतरीन तो रुत सलूक। और एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, इसलिए इसमें कुछ टेढ़ापन है, अमिस में त्रोशर आसन, अमिस में बेकवजी आसन, मगर अगर आप इसको सीधा करना चाहोगे तो आप इसको तोड़ दोगे, इसलिए इससे इसी टेढ़ेपन में ही नफा उठाओ, यानी अमिस टेढ़ापनस में है क्या। बल्कि कुरान की अगली आयत जो हम इंशाल्लाह कल दरस में पढ़ेंगे उसमें नसीहत की गई है मुसलमानों को कि अगर तय अमिस कह सिफत या कह खसलत तथ पे आसो तय शिकायत सो आसो तय नापसंद, मगर तोकुन अजो न वुशन क्या, नजर अजो कर अम सद सिफातन कुन और दरगुजर अजो कर दपन अजो वल अगर यह कोताही छस मगर वारिया खूबी ती छस। बहरहाल यही हुक्म यहाँ पर है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ए लोगो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक अदा करना, यमन सद कर बेहतरीन सलूक। बल्कि रिवायत में आता है उसी हज्जतुल विदा के मौके पर भी रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर ये आपके अगर इनका गलती करें, अगर कोई सरी गलती ये करें जिस पर इनको डांटना जरूरी हो तो इन्हें हल्की मार मारो, यानी इमन मर्ज क्या मुहमरी ये मैं डांट ना गुजरा, मगर उसमें भी ताकीद रसूलुल्लाह ने फरमाई कि इनके चेहरे को कभी नहीं मारना, यानी बुथिस पे अजब लायन ये। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म किया, एक तो उन औरतों के बारे में हुक्म आया कि इनको आप वरासत के माल की तरह तकसीम नहीं कर सकते हैं, दूसरा यह हुक्म आया कि आप इनको घरों में नहीं रोक सकते हैं, कैद नहीं कर सकते हैं इस नियत के साथ कि आप इनके माल को हड़प कर जाएंगे, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इनका निकाह किसी दूसरी जगह करो, उनसे बड़े बड़े मोहर वसूल करो, तोहफे और तहाई वसूल करो, उसको भी आप हड़प कर दो और इस लड़की को कुछ भी ना दो। बहरहाल यावन और फिर तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को हुक्म किया गया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करना, यमन से कारण बेहतरीन सलूक। अच्छा, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, मारूफ किसे कहते हैं? आमतौर पर अगर मारूफ लफ्ज पढ़ा है अमर बिल मारूफ तो नहीं अनिल मुनकर अजकार, अमर बिल मारूफ किसको कहते हैं? मारूफ कहते हैं जो जानी पहचानी चीज हो, जिसके साथ इंसान मानूस हो, जिस इंसान पाने बास की में फितरत, तो अल्लाह ताला कहता है कि इनके साथ फितरत के साथ अच्छे और भले अंदाज के साथ पेश आओ। अल्लाह ताला फरमान फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ, हाँ बस अगर आप इनमें कोई कोताही देखो, अगर तो यूं का खसलत जो मैं कह रहा था कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना, बस अगर आप इनमें कोई खसलत ऐसी देखो जो आपको नापसंद हो, फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, तो फ़असा अन तकरहू शैअन, तो हो सकता है कि ये खसलत आपके सामने नापसंद मगर अल्लाह के सामने ये पसंदीदा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक खसलत इनमें नाकारा है मगर बाकी अच्छी खसलतों की तरफ भी इनकी तरफ नजर दौड़ाओ। जैसे कहीं खानदारी, चलो ये मुलाजिम नहीं है या ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं, ये तो इसमें एक कोताही या ऐब है, मगर अल्लाह ताला दपन अत ऐबस कुन मत थी ज्यादा नजर, तलसा बाकियन अम सद सिफातन कुन वुचू, तुम वुचू यह कता फरमा बरदार चोन, च वुच यह कता खुदमत गुजार, च वुच अमिस कता रत अखलाक, च वुच अमिस कता रत शक्लो सूरत, च वुच यह कता असल पे मान रिश्तेदार से पेश योन, तो आप एक कोताही को पकड़ कर मत रहो, बल्कि च वुच अम सद कमन कुन सिफातन कुन। ये खानदानी असूल बयान किया जा रहा है कि मर्द हजरात गए खातून या पन्ने खानदानी हज ऐबन पे नजर थाउन के, तिकाज सह गम सद कमन पे नजर थाउन, सिफात तेले है घर अमनो घर। और यही हुक्म असल में औरतों के लिए भी है कि खातून गए पन्निस खानदानस मुझे हाय वह हु चीज वह यह चीज वह हु चीज, बल्कि सह गो वुचन अम सद सिफातन कर, तब ही इनका ये घर जन्नत का नमूना बन सकता है। अल्लाह ताला फरमान फ़इन करिहतुमूहुन्ना, बस अगर आप इनकी कोई खासलत या कोई कैरेक्टर यूं जो आपको नापसंद हो, अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फीही खैरन, हो सकता है कि अल्लाह ने उसी में बहुत खैर कसीर आपके लिए रखा हो। बहरहाल अल्लाह ताला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दीन ऐसे या यमन आयात मुबारकन पर अमल करने तौफीक, और अल्लाह तबारक व तआला दीन सही मानान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।